Exactly. Yeah. So I think I gave few homeworks also or not last time. No, No, ma'am. Okay, then it's good then. Last time हमने Ma'am, we plant have tissue. done till meristematic tissue, like Right. permanent tissue is remaining. करेक्ट. सो फर्स्ट हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में देख रहे थे, देन टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आल्सो आई थिंक वी हैव डन डायग्रामेटिक Yeah, ma'am. रिप्रेजेंटेशन आल्सो. सो Yes, ma'am. आई वुड लाइक कि वन बाय वन, बिकॉज ये मेन जो टॉपिक है दैट इज फॉर 7th स्टैंडर्ड, बट स्टिल 8th स्टैंडर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है. आई विल रिपीट वन मोर टाइम कि आपके ओलंपियाड्स और बाकी जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इफ यू आर प्लानिंग, जिसमें बायोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल in KVPY, in Olympiads, in any other things. And for those students who would Yeah, ma'am. like to take admission in NEET batches in future, तो आप लोगों के लिए बहुत important है. Okay, so one by one, please students एक बार revise कर लेते हैं कि last time हमने क्या पढ़ा था, so that I will understand कि किसको कितना समझ में आया. Okay, you all can raise your hand. I ma'am, would can you like tell? कि 7th standard के students ज़्यादा participate करें rather than 8th standard. Ma'am, Yes. can you tell who is Gregor Mendel? Sorry, Mendel? can you tell? Can you tell us about who is Gregor Mendel? Okay, Mendel, about Gregor Mendel. Yes, ma'am. Okay. I have heard that he is one of the great biologists. Okay, definitely. I would like to discuss about Gregor Mendel and the genetics part, especially. So yeah, first of all, let's have a discussion कि last time हमने क्या पढ़ा. One by one, if you all repeat the points, then I will explain you all about the Gregor Mendel and especially the genetics related to the Mendel, means whatever he discovered and how his journey went from he was actually a priest, if you all know. Gregor Mendel was a priest and he was handling a church. And after some time that he was very much into gardening and maintaining a garden or botanical garden. And then he realized many of the genetical aspects also. So it's a very interesting story and a good information for all of you. Okay, so yes, Khushi, you raised your hand. Can you please explain? Yeah. Ma'am, we have done the classification of the plant tissue. They're divided into two parts. Mhm. First part is the meristematic tissue and second part is the permanent tissue. The difference between the meristematic and the permanent tissue is that they meristematic tissue undergo the cell division, Mhm. but the permanent tissue they don't undergo to a cell division and they had a specific function. Mhm. The meristematic tissue they are divided into there are three types that is apical meristematic tissue, lateral meristematic tissue or the cambium, Mhm. and the intercalary meristematic tissue. Okay, that's it. The That's it, use Khushi. of the Let's ask the further points from someone else. Absolutely correct and very good. Okay, Bhavya, can you tell the next part about the permanent? Permanent tissue, ma'am. Yes. Okay, ma'am. Basically, when meristematic tissue, like when they stop undergoes cell division, that is the permanent tissue. Mm-hmm. And basically, they are of two types. That is simple permanent tissue and complex permanent tissue. Mm-hmm. The simple permanent tissue are divided into three main types. That is parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma. Okay. And complex permanent tissue are xylem and phloem. Mm-hmm. And basically these parenchyma tissue, they are responsible for formation of food. Mm-hmm. And even they are divided into two more types, that is erenchyma and chlorenchyma. That we will discuss. So Because we have to explain to students also. So that we will discuss. Okay. okay, ma'am. Okay. Good. Very good. And okay, ma'am. Yes. And ma'am, basically, the permanent tissue are basically responsible for mechanical support and for transporting materials, food, Okay. and water materials. Okay.
So yes, that's what we discussed last time. So अभी हमें क्या करना है कि I think I already told you about the concept of differentiation. बस एक quick revision and then we will move ahead with the topic. The terminology is differentiation. I think you all know. तो जो ये पूरे के पूरे tissues हैं और उनका differentiation है, means उनका जो category wise उनका division है, that category is based on the nature. Means those students who still didn't understood, उनके लिए है. तो वो जो क्या बोलते हैं category है, that is completely based on their functions. Means how they are performing, what they are doing. So उसके basis पे है. तो इसीलिए ओवरऑल जो प्लांट टिश्यूज हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं. वन इज ऑलवेज गोइंग टू बी समथिंग विच विल हेल्प इन ऑल काइंड ऑफ कह लो ग्रोथ, जितने भी, चाहे सेल एलोंगेशन हो, चाहे सेल का डिविजन हो, या इन जनरल अगर जो आप कह सकते हो अबाउट अगर डैमेज हो गया या वुंड हो गया. सो इस टाइप की जब सिचुएशन होती है उस टाइम पे एक रिपेयर मोड होना चाहिए, एक रिपेयर, एक ऐसा डिपार्टमेंट होना चाहिए जो इन सब चीजों का ध्यान रखे. सो वो चीज कौन कर रहा है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. यस Ma'am, they increase in the diameter and the length. right, they increase the width of the plant, they increase the height of the plant. Also individually they increase the size of the cell. Suppose initially size of a particular cell is of this size, then they also help in getting all kind of maturity, full form of maturity. So this is known as cell elongation. तो इसको हम overall क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल का ग्रोथ. तो जो ओवरऑल इंडिविजुअल है उसका ग्रोथ मैकेनिज्म है, दैट इज कंप्लीटली परफॉर्म्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. अभी एक चीज, एक फैक्टर, एक पॉइंट्स जो मुझे आपको बताना है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अकेले कोई काम नहीं करता. देयर इज अ concept that is known as control and coordination. So basically control and coordination में exactly क्या हो रहा है कि some chemicals are helping meristematic tissue. एंड दोज केमिकल्स जो होता है अगर वो प्लांट में हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? फाइटो कोऑर्डिनेशन, या फिर जो फाइटो केमिकल्स हैं वो हेल्प कर रहे हैं, विच इज नथिंग बट हॉर्मोन्स. Okay, so if you all must be wondering कि exactly मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ट्रिगर कौन करता है, वो ही क्यों डिवाइड हो रहे हैं, कैसे डिवाइड हो रहे हैं. सो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हॉर्मोन्स. अगर हॉर्मोन्स नहीं होंगे तो उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन या किसी भी टाइप का क्या बोलते हैं कि फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाएंगे रिलेटेड टू डिविजन. ओके, सो दैट इज समथिंग नोन एज. यस Ma'am, means the main thing is hormone which controls them. If it is not there, then the plant growth will be not possible. You want to know about the hormones? Yeah, ma'am. Okay, so the main hormones which are responsible is auxin. I think सबने सुना होगा about auxin. So the main hormone is auxin, and उसके बाद which helps in growth. If you're talking about all the growths, then this is cytokinin. सो बेसिकली ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन का मेन पार्टिसिपेशन क्या है कि कहीं भी सेल डिवीजन की रिक्वायरमेंट है, कहीं सेल एनलार्जमेंट की रिक्वायरमेंट है, सेल एलोंगेशन की रिक्वायरमेंट है. सो इस टाइप के जो रिक्वायरमेंट्स हैं दैट इज परफॉर्म्ड बाय ओनली हॉर्मोन्स. ठीक है, तो वो हॉर्मोन्स का क्या है कि दे आर नथिंग बट प्रोटीन्स. मीन्स ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है विच आई एम गोइंग टू गिव यू. कोई भी हॉर्मोन्स या कोई भी एंटिटी विच इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन एनी काइंड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन किसी भी इंडिविजुअल में अगर हो रहा है तो दैट पर्टिकुलर प्रोटीन, दैट पर्टिकुलर हार्मोन एंड दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इज नथिंग बट प्रोटीन. ठीक है, सो ये जो प्रोटीन होते हैं इनका अब क्या होगा? दे आर मेड अप, इन प्रोटीन्स का सिग्नल होता है, सो दे हेल्प इन डिटेक्टिंग सिग्नल्स. तो ये हॉर्मोन्स क्या करेंगे? अपने केमिकल नेचर की वजह से राइट लोकेशन पे पहुंचते हैं एंड उस लोकेशन पे देन दे एनालाइज, ओके दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड. देन दे प्रमोट द सेल्स, और उनके जो अदर बायोकेमिकल सब्सटेंसेस हैं या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं वो उनको फिर एनकरेज करते हैं, ओके दैट यू हैव टू डू दिस टास्क. So they assign this way. So this is their journey, means how means in general hormones perform, not only in plants, in any of the organisms. This is the only way. Okay, so control and coordination, this topic properly you all are going to study in 10th standard.
Okay, but yes, for now you all have to have little bit of understanding कि exactly यहाँ पे क्या क्या हो रहा है. तो हॉर्मोन्स का मेन पार्टिसिपेशन है, वो नेचर डिसाइड, वो पर्टिकुलर लोकेशन पे फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, डिसाइड करवाते हैं एंड सक्सेसफुली परफॉर्म कराने में भी हेल्प करते हैं. सो दैट इज द मेन रोल ऑफ हॉर्मोन्स. तो जब भी कोई सेल, जब तक उनका काम डिफरेंशिएट ना हुआ हो, डिफरेंशिएशन का मीनिंग ही है कि उनका फेट डिसाइड ना हुआ हो. फेट फेट डिसाइड इन द सेंस कि उनका जो रिक्वायर्ड टास्क है वो परफॉर्म हो पा रहा है कि नहीं, दैट इज द फेट. अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा जब भी डेवलपमेंट हो रहा है, हमारी बॉडी इन जनरल जब डेवलप हो रही है, सो सम सेल्स विल बी आई इन फ्यूचर, सम विल बी हेयर, some will be skin, some will be internal organs also. तो Yeah, ये चीज ma'am. कौन डिसाइड कर रहा है? ओके, दैट इज नोन एज डिसीजन ऑफ फेट. ओके, तो जो ये फेट होता है ना, इसी प्रोसेस को या कह लो ऑर्गन डेवलपमेंट के प्रोसेस को हम ऑर्गेनोजेनेसिस या फिर सेल डिफरेंशिएशन बोलते हैं. ओके, सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट सेल डिफरेंशिएशन. तो ये जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, मतलब ये ओवरऑल जो कह लो इंडिकेशंस हैं, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, वेरी स्मॉल स्टेज में. जब फर्टिलाइजेशन जस्ट हुआ है या ऑर्गन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट हो रहा है, वो तभी डेवलप होने लगते हैं. ओके, सो ये जो इन डेप्थ जो इसका कॉन्सेप्ट है, यू ऑल आर गोइंग टू स्टडी इन मे बी इन 11th स्टैंडर्ड आप स्टडी करोगे अगर आप बायोलॉजी के साथ कंटिन्यू कर रहे हो, and little bit of information you all are going to get in 10th standard. Okay, so this is about it, because I have to explain you Mendel also, since you have asked about it. Next comes permanent. बस थोड़ा सा repeat करती हूँ, then I will tell you about the Mendel. देन परमानेंट इश्यूज में क्या हो रहा है कि उनके में भी अब टास्क आप डिसाइड कर रहे हो. अगर किसी चीज का आप टास्क डिसाइड कर दोगे, मतलब उनका फंक्शन असाइंड हो जाएगा एंड एक सीक्वेंस मेंटेन हो जाएगा. मतलब हर चीज अब सिस्टमैटिक हो जाएगी. दैट इज द मीनिंग ऑफ परमानेंट. मतलब कि वो उनको अब कंप्लीटली अपने फंक्शन पे फोकस करना है, ना कि डिविजन पे. दे डोंट हैव टू बॉदर अबाउट कि हमारे सेल्स 10 बजे या 20 बजे. ओके, they only have to think, okay, our work is, suppose our work is to transport water only or to transport food only, so they are going to focus on that particular task, nothing else. अगर डैमेज हो रहा है, Yeah. सपोज जाइलम या फ्लोएम टिश्यूज में कहीं डैमेज हो रहा है, सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. दे विल मीन्स ट्रिगर द इंडिकेशन कि ओके, इस लोकेशन पे डैमेज हो गया है, टिश्यू डैमेज हो गया है, या फिर टिश्यू का जो ओवरऑल नंबर है या सेल का नंबर है वो कम पड़ रहा है, एंड द टास्क इज मोर, दे नीड मोर सेल. सो दैट पर्टिकुलर वर्क इज गोइंग टू बी डन बाय मेरिस्टेमेटिक. एंड वो इनिशियली जो भी सेल डिविजन करेंगे, आफ्टर सर्टेन मेच्योरिटी वो अगेन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? परमानेंट में. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ ओवरऑल परमानेंट टिश्यू. अभी इसमें आ जाते हैं पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा. नाउ देयर मेन फंक्शन, जितने भी आप क्या बोलते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड, फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड जो भी फंक्शंस हैं, नॉट एग्जैक्टली ट्रांसपोर्टेशन, फूड फॉर्मेशन जहाँ पे होता हो, सेल की ह्यूमिडिटी इन जनरल मेंटेन करनी है, सेल को ओवरऑल प्लांट बॉडी को क्या बोलते हैं कि सपोर्ट करना है, उनका स्ट्रक्चर मेंटेन करना है, उसमें कहीं ना कहीं किसका हेल्प होता है? पेरेन्काइमा का. ओके, सो दे कंस्टिट्यूट मल्टीपल थिंग्स. पेरेन्काइमा कंस्टिट्यूट मल्टीपल थिंग्स. सिमिलरली स्क्लेरेन्काइमा. अभी स्क्लेरेन्काइमा का जो ओवरऑल नेचर है, इन ये पेरेन्काइमा से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है. रीजन, पेरेन्काइमा कहीं ना कहीं सॉफ्ट बॉडी है. ओके, ऑल द सॉफ्ट काइंड ऑफ टिश्यूज आर पेरेन्काइमा, दे आर फ्रेश, और उनका काम है एब्जॉर्प्शन के थ्रू वन प्लेस टू अनदर प्लेस सब्सटेंसेस को पहुंचाना, कम्युनिकेशन में हेल्प करवाना. दैट इज देयर मेन फंक्शन. स्क्लेरेन्काइमा बेसिकली क्या है? स्क्लेरेन्काइमा रिजिड है एंड पर्टिकुलर प्लांट को सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करता है. दैट इज बेसिकली स्क्लेरेन्काइमा. ओके, सो दीज आर द थिंग्स विच आर रिलेटेड. मैं आपको इन डेप्थ थोड़ी देर में बताती हूँ. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट मेंडल, because since it's an interesting part, then I'm going to discuss few points related to Mendel. Shall I move ahead? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yeah, ma'am. Okay, so let's discuss. आपका जो main topic हम discuss करेंगे, that is genetics and inheritance. It's quite interesting actually. It's not something कि
कह लो ये बायोलॉजी का एक जनरल नॉलेज है विच आई थिंक एवरीवन शुड कैरी, नॉट ओनली दोज हु आर परस्यूइंग बायोलॉजी, ऑल्सो कॉमन पीपल इन जनरल, क्योंकि इनहेरिटेंस का अभी इन दोनों का मैं मीनिंग आपको बता देती हूँ। जेनेटिक्स मतलब कि हमारा जो न्यूक्लियाइक एसिड है, हमारा जो मेन डीएनए है, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंडिविजुअलिटी व्हिच वी आर कैरिंग, दैट इज बेसिकली जेनेटिक्स। मतलब सिंपल लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं डीएनए की। Now let's talk about inheritance. Inheritance is something which passes from one generation to another generation. Okay, means वो characteristics which passes from one generation to another. Okay, that is basically inheritance. Abhi, the first person who actually focused on this point, means जिसके दिमाग में ये बात आई, that was Gregor Mendel. ओके और इनकी जो बनाई हुई जितनी भी थियोरी है उसको हम मेंडलिज्म बोलते हैं। व्हाई वी कॉल इट मेंडलिज्म? बिकॉज ही मेड सो प्रिसाइज, उनकी जो डिस्कवरीज थी वो इतनी ज्यादा प्रिसाइज थी कि नो वन कुड गो अगेंस्ट हिम। मींस उनके जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी जो बनाई हुई थियोरीज हैं, उसके अगेंस्ट कोई जा ही नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने इतना एडवांस क्या बोलते हैं कि स्टडी किया था। दैट इज द रीजन ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब उन्होंने क्या स्टडी किया मैं वो बताती हूँ। एक छोटी सी स्टोरी है। ग्रीगर मेंडल वाज अ प्रीस्ट। He was actually before botanist and before being anyone, before being scientist, he was a priest. He was handling a church. और बिकॉज उनको शौक था गार्डनिंग का, टू मेंटेन द स्पीशीज, टू मींस नर्चर प्लांट्स, ये उनके शौक की वजह से ही नोटिस्ड फ्यू थिंग्स। उन्होंने क्या नोटिस किया? उन्होंने फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज नोटिस की, दैट इज वेराइटीज। दे आर लाइक, उन्होंने मोस्टली कौन सी वेराइटीज को नोटिस किया? पीज, मटर। ओके, तो ये जो वेराइटीज है इनको नोटिस करने के बाद ही केम अप विथ मल्टीपल थिंग्स। लाइक पहली चीज कि वो सब कोई, हर प्लांट पी प्लांट है, बट स्टिल इनमें इतने वेरिएशंस कैसे हैं? मतलब कि जो पीज के सीड हैं उनका शेप अलग है, किसी का साइज अलग है, किसी का कलर में भी वेरिएशन है, कुछ ग्रीनिश, डार्क ग्रीनिश कलर है, कुछ येलोविश कलर है। मींस दो एवरीथिंग इज पी, बट स्टिल उनमें काफी चेंजेस और कह लो वेराइटीज एग्जिस्ट करती हैं। ओके, सो ये एग्जिस्टेंस जो था, इट मेड हिम वेरी क्यूरियस कि ये इस तरीके से कैसे ये सब कुछ क्या बोलते हैं कि एक ही स्पीशीज है, एक ही कह लो कि रिलेटेड चीजें हैं, बट स्टिल व्हाई दे आर सो डिफरेंट। तो कुछ उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स खोजे एंड ही डिड वन इम्पॉर्टेंट पार्ट, ही फोकस्ड ऑन द रिप्रोडक्शन। हाउ ही फोकस्ड ऑन द रिप्रोडक्शन? ही बिलीव्ड इन फ्यू ऑफ द क्रॉस ब्रीडिंग टेक्निक्स। मतलब उसने क्या सोचा कि यार कहीं पे येलो पीस है, कहीं पे ग्रीन है, सो लेट्स क्रॉस देम, येलो एंड ग्रीन। ओके, मे बी साइज किसी का अलग है तो डिफरेंट डिफरेंट, कहीं पे टॉल है, कुछ प्लांट्स डॉर्फ हैं, let's cross them both and let's see what will be the results. Okay, कोई जो पीस का शेप था, किसी का wrinkled था, किसी का proper round था। So he is like कि इनको भी हम क्रॉस करवा के देखते हैं कि रिजल्ट क्या आएगा। तो जब उन्होंने फर्दर फ्यू जनरेशंस स्टडी किया, आफ्टर सेवरल क्रॉसिंग, आफ्टर सेवरल एक्सपेरिमेंट्स, ही कंक्लूडेड फ्यू ऑफ द पॉइंट्स। उन्होंने क्या कंक्लूड किया? उन्होंने बताया कि देयर इज समथिंग व्हिच इज नोन एज ट्रेट्स। ट्रेट्स इज नथिंग बट कैरेक्टरिस्टिक्स। This is same thing, same meaning है। So he said there are some characteristics, there is some traits which passes from one generation to another. From one generation to another. Means he basically said कि यार कुछ तो ऐसा है, कोई तो ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो रहा है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, ऐसे भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पेरेंट्स में होते हुए भी नेक्स्ट जनरेशन में पास ही नहीं हो पा रहे। ओके, सो दैट इज द पॉइंट ही कंक्लूडेड। एंड उन्हीं चीज को क्या बोलने लग गए उस टाइम पे? फैक्टर्स बोलते थे। उस टाइम पे पता नहीं था कि अबाउट जेनेटिक्स, उस टाइम पे डीएनए की इतनी डीप स्टडीज नहीं हुई थी, इतना मतलब नॉलेज नहीं था, एडवांसमेंट नहीं थी इन द स्टडीज। सो दैट्स व्हाई ही कॉल्ड ऑल दोस थिंग्स एज फैक्टर्स। तो जो ये ट्रेट्स या फैक्टर्स होते हैं ना, ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है डोमिनेंट
एंड एक होता है रेसेसिव। अभी डोमिनेंट और रेसेसिव में फर्क क्या है? डोमिनेंट फैक्टर्स वो होते हैं जो अगले जनरेशन में शो होते हैं, ठीक है, मींस विच इज जो नेक्स्ट जनरेशन में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स विजिबली आप देख पाओगे या फिर इन जनरल आप देख पाओगे या ऑब्जर्व कर पाओगे, दोज कैरेक्टरिस्टिक्स आर नोन एज डोमिनेंट। और रेसेसिव मतलब जो दिखते नहीं है, विच आर नॉट विच हैवंट एक्वायर्ड द इंडिविजुअल। तो ही फाउंड आउट कि दो टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स के दो रूप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई कलर, ठीक है। तो मदर एंड फादर यानी मैटरनल एंड पैटर्नल, इनमें अगर क्रॉसिंग हो रही है, अगर मदर की आंखें ब्लू हैं एंड फादर की ब्लैक, एंड इनके कॉम्बिनेशन के बाद नेक्स्ट जनरेशन में सपोज द चाइल्ड हैज ब्लैक आईज, तो मतलब क्या कंक्लूड क्या करोगे, दैट कि नेक्स्ट जनरेशन में ब्लैक कलर वाज डोमिनेंट इनफ। Okay, so black color was dominant enough to be showed. Okay, that is the meaning of this particular chart. Means ये जो conclusion है इस particular case का यही conclusion है. Okay, yes, खुशी. Ma'am, Mhm. if both the maternal and the paternal, if there are not much dominant, so ma'am, then it would be the combination of both the colors. Right, उसी को हम co-dominance बोलते हैं. He concluded that also because there were many plants, especially flowering plants, जिन्होंने जो उन्होंने देखा कि दे सम सेम स्पीशीज में रेड कलर भी एग्जिस्ट करता है, पिंक कलर भी, व्हाइट कलर भी एग्जिस्ट करता है, एंड जब उनको क्रॉस किया सो समथिंग एल्स बन गया, दैट इज पिंक। तो वो क्या हो Ma'am, गया, like वो hibiscus. सॉरी हेबिस्कस, यस आप Ma'am, कह like सकते हो, hibiscus. राइट राइट। So and there is one more plant, Mirabilis jalapa, इसको हम हिंदी में बारहमासी फूल भी बोलते हैं। So ये एक ऐसा फ्लावर है जो पूरे साल रहता है। You must have seen पर्पलिश कलर के होते हैं, स्मॉल श्रब्स होते हैं इनके। So उनका भी उन्होंने बेसिकली उनका ऑब्जर्वेशन देखा। So this was the conclusion. He found out कि मदर एंड फादर, हर इंडिविजुअल, एनी इंडिविजुअल किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स के दो रूप हमेशा, दो वर्जन्स रखते हैं अपने पास। उसी को वर्जन्स को हम बोलते हैं एलील्स। मींस you all have to study everything in 10th standard, I think in your genetics part you all have to study everything. Yes, Shaurya. Ma'am, can you tell about us in the Sorry, recessive? about recessive you want to know? Okay. Yes, because I saw a chart in which black and blue was written, and it was told that the father's two black Mhm. genes. Mhm. Right. So I will explain one more time. Basically recessive characters कौन कौन से characters होते हैं जिनका नेक्स्ट जनरेशन में कोई विजिबली आप डिस्टिंक्ट नहीं कर पाओगे, दैट इज रेसेसिव कैरेक्टर्स। मतलब कि हर चीज के लाइक एक कॉइन है, कॉइन के दो साइड होते हैं, राइट। बट अब कॉइन जब आप फेंकते हो और वो गिरेगी तो कौन सा हेड आएगा कि टेल आएगा, दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द चांस। सिमिलरली हमारी जेनेटिक्स के साथ भी होता है। वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मींस जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिविजुअल में है उसके हमेशा दो वर्जन्स होते हैं। कैसे दो वर्जन्स होते हैं? बिकॉज वन फ्रॉम मेल एंड वन फ्रॉम फीमेल। तो वो जो दो वर्जन्स होते हैं ना, उसमें से एक एक ही हमेशा शो हो पाता है। आपने सुना होगा, बच्चों को भी बोला जाता है, आपको भी बोला जाता है कि यू लुक लाइक योर मदर, यू लुक लाइक योर फादर, और मे बी योर आईज आर लाइक योर मदर, और मे बी योर स्किन इज लाइक योर फादर। ऐसा बोला जाता है, सबको बोला जाता है, राइट। Why? Because those are the characteristics. Not all characteristics in your mother was dominant, or not neither in your father. तो इससे क्या हुआ, जो भी जिसमें भी डोमिनेंट थे वही कैरेक्टरिस्टिक शो हुए। सो दैट इज द रीजन कि वी आर नेवर एग्जैक्टली लाइक आवर मदर और एग्जैक्टली लाइक आवर फादर, क्योंकि हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मींस उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आए, कुछ डोमिनेंट थे, कुछ रेसेसिव थे। तो हमारे केस में जो डोमिनेंट बने वो हम दिखे, और जो नहीं है वो नहीं दिख रहे। तो इसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है, पूरा मिक्स कॉम्बिनेशन
कॉम्बिनेशन हो जाता है. ओके, सो जैसा कि खुशी ने भी लास्ट टाइम बोला था अबाउट अगर दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक सेम लेवल पे हो, सेम लेवल पे रिसेसिव हो या सेम लेवल पे डोमिनेंट हो, देन व्हाट. तो तब उस केस में क्या हो जाता है, दोनों का एक मिक्स वर्जन आ जाता है. ओके, एंड ऐसा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज स्किन कलर. दैट इज द रीजन स्किन कलर कभी भी डोमिनेंट नहीं हो पाता है. इट्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन कोडोमिनेंस. दैट इज ऑल्सो द रीजन कि हमारे पास इतनी वेराइटीज हैं स्किन कलर्स की. ओके, मोर देन 18. यस खुशी. Ma'am, in that eye color, there is one also means it is harmless, but it is a disease known as partial heterochromia. Right, right. It's, Heterochromia. there are two different eye colors like Correct. black and brown. Correct. And you will find this heterochromia common in huskies. Everyone knows Yes, dog breed husky जो wolf की तरह दिखते हैं. उनमें ma'am, I most Yes, ma'am. okay, many students must have the pet also. तो उनके में most common disease है, means this is a genetic disease actually. Genetic disease नहीं बोलेंगे, this is something like genetic disorders kind of thing which is not at all harmful. But yes, उससे क्या हो जाता है कि दोनों आंखों में आपको अलग अलग शेड्स दिखेंगे, मीन्स एक आंखें ब्लू होंगी, एक आंख ग्रीन होगी, और एक ही आंख में आपको एक ही मीन्स आइरिस में आपको मल्टीपल कलर्स भी दिख सकते हैं. एक कहीं ना कहीं किसी किसी को ऑरेंज पैचेस हो जाते हैं या उनकी ब्राउन आइज होती है और कहीं कहीं पे ब्लू पैचेस हो जाते हैं. सो दिस इज बेसिकली हेटेरोक्रोमिया. हेटेरो मीन्स डिफरेंट एंड क्रोमा मीन्स कलर. तो यानी डिफरेंट कलर एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज द केस कॉल्ड हेटेरोक्रोमिया. एक जेनेटिक डिसऑर्डर है. वो आई कलर वो तब आता है जब जो दोनों आई कलर्स हैं उसमें क्या बोलते हैं कि दोनों ही कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं हो पाते, और को डोमिनेंस के चक्कर में क्या हो जाता है कि अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक शो करने के चक्कर में अलग अलग आईज का अलग अलग कलर हो जाता है. कभी कभी तो एक ही आईज में आपको मल्टीपल कलर्स भी दिख जाएंगे. ओके, ma'am, दैट इज बेसिकली द केस. यस. ma'am, it can also happen in many other animals also, like Yes, it can happen. and It in happens in human human also. also. There are many human. There are very famous celebrities also. Especially, I'm not sure about the name, but that lady means she's a Hollywood actress, and she has basically heterochromia, and she flaunts it very well. Means she never uses lens, और उनकी दोनों आंखें अलग अलग कलर की. She's a very aged woman. So I'm not sure. I'm not able to recall the name. तो यस, हेट्रोक्रोमिया जो डिजीज है इट इज बेसिकली लिटिल डिसऑर्डर जो कि जेनेटिक्स में हो जाता है, और ये तभी होता है जब दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपरली शो नहीं हो पाते. एंड देर आर नॉट ओनली दिस, स्किन कलर जो मैंने बताया, इट इज नॉट अ डिसऑर्डर. स्किन कलर में क्या होता है कि देर इज नेवर अ सिचुएशन कि एक पर्टिकुलर शेड डोमिनेट करे. they always exist in codominance, and that is the reason we have so many variations in skin color. Okay, you can never find ki means particular person has exactly same skin color like their parents. हाँ, दोनों ही parents का shade same है, so it's a better chance कि बच्चों का skin color most match होगा अपने parents के साथ. Otherwise it's never matches. आप लोग अपने घर पे भी इतने variations देख सकते हो. Okay, that is the reason. Also hair, their shape and means how they look like, उनका texture जो है, like curly hairs are always dominant, straight hairs are recessive. But straight hairs recessive होने की वजह से it's very rare. जो straight hairs होते हैं they are very rare, and the curly hairs dominant है but still rare because जो co-dominance आने की वजह से, because of this factor only. ओके, एंड जो ओरिजिनल कलर होते हैं ना, मींस जो लाइक एक्सट्रीम लाइक व्हाइट कलर, लाइक मैं अगर स्किन की बोलूं तो दो बॉर्डर्स होते हैं. वन इज एल्बाइनो एंड द अदर इज नीग्रो. इनके बीच में बाकी मल्टीपल शेड्स एग्जिस्ट करते हैं. ओके, सो द अल्बाइनो एंड नीग्रो के बीच में ये जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, टू बॉर्डर लाइन, इनको हम बोलते हैं वाइल्ड. दे आर वाइल्ड ट्रेट्स. ठीक है, एंड दे आर मॉडिफाइड ट्रेट्स या मिक्स्ड ट्रेट्स. सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट जो ग्रीगर मेंडल ने किया. उन्होंने एक्चुअली पीज को एज अ सैंपल रखा था सारी जेनेटिक स्टडीज के लिए. ही चेक्ड अबाउट द कलर ऑफ पीस, देयर साइज, प्लांट साइज, देन उनका ओवरऑल प्लांट साइज में टॉल एंड ड्वार्फ आ गया, देन उनका फ्लावर
flower color, then flower position. So there were many characteristics like this जो उन्होंने किया. उन्होंने not only single characteristics, उन्होंने 2 characteristics के भी कंपैरिजन किए. तो एक बहुत ही सिंपल कंपैरिजन स्टडी है जो मैं आप लोगों को बताती हूँ. सो द फर्स्ट इज रिलेटेड टू टॉलनेस एंड डॉर्फनेस. So suppose capital T is something related to tallness and small t is related to dwarfness. तो अगर आप प्योर ब्रेड देखोगे यानी फर्स्ट जनरेशन में अगर आप 2 प्योर ब्रेड टॉल एंड ड्वार्फ का क्रॉस करवाओगे तो उनकी पॉसिबिलिटी कैसे आएगी, मींस हाउ ही जज द पॉसिबिलिटी. चांसेस क्या है, ये और ये कॉम्बिनेशन. ओके देखना पहले, समझना कि मैं मींस मुझे बताना आप समझ पा रहे हो क्या. दिस मींस पॉसिबिलिटी है कि ये टी और ये स्मॉल टी फर्स्ट अटैच हो पाए. आर यू गेटिंग एवरीवन? कॉम्बिनेशन. राइट, दीज Ma'am, आर जस्ट कॉम्बिनेशन. और इसी तरीके से मींस कोई भी टी इसके किसी भी टी के साथ कंबाइन करेगा तो आउटकम क्या आने वाला है, ओनली कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. राइट, सो दिस इज व्हाट, दिस इज F2 जनरेशन. अभी कैपिटल टी और स्मॉल टी यानी ये क्या हो गए, जेनेटिकली क्या बन गए, मिक्स बन गए. ये मिक्स तो हो गए बट दिखेगा कौन सा, ओनली tallness, the capital T. Why? Because this was dominant and this was recessive. Okay, ये थी. Ma'am, means more dominant will be that. Ma'am, dominant means it would be there most. Right. Probably it would be Right, there, and right. recessive means मतलब not जो much चीज आप probability. इधर विजिबली और किसी न किसी वे में आप देख सकते हो. ओके, कौन सी चीजें विजिबल नहीं होती, ब्लड ग्रुप. राइट, बट ब्लड ग्रुप भी इसी मैकेनिज्म से इसी मैकेनिज्म से पास ऑन होता है. ओके, अब ये इसको टेस्ट करवाना है तो आपको ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा, योर ब्लड ग्रुप टेस्ट. ओके, सो बेसिकली ये भी एक वही कैरेक्टरिस्टिक हो गया जो डोमिनेंट और रिसेसिव के बीच में लाई हो रहा है. ओके, सो दिस इज ऑल्सो द सेम पार्ट. अभी देखो F2 जनरेशन हुआ. नाउ ही डिसाइडेड कि मैंने तो वाइल्ड ट्रेट्स को कंबाइन करवाया एंड मुझे नेक्स्ट इसमें क्या मिला, एवरीवन वाज टॉल. सो मे बी ही थॉट कि सारे प्लांट्स में शायद सिर्फ टॉलनेस वाला ही कैरेक्टरिस्टिक्स गया. देन व्हाट ही डिड, ही इंटरब्रीडेड द F2 जनरेशन, क्योंकि ये मिक्स थे. सो इनके बीच में भी इंटरब्रीडिंग करवाई. सो द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी दैट ही गॉट वाज कैपिटल T स्मॉल t, सॉरी कैपिटल T. देन कैपिटल T को एक बार स्मॉल t के साथ भी हम कर लेंगे. देन अब ये वाली कैपिटल T और ये वाला स्मॉल t, and then this capital T, this small t and another small t. एक last possibility यही रह गई है, the small t and this one. Okay, I will use another color so that आप लोगों को better समझ में आए. Ma'am, interbreeding means that the product which has or the thing which has been came after the reproduction. Ma'am, that is the interbreeding. We Yes, have crossed yes. both उनके of जो them. सेकेंड जनरेशन जो भी आया उस सेकेंड जनरेशन के बीच में उन्होंने ब्रीडिंग करवाया. ओके, और क्यों सेकेंड जनरेशन के केस में बीच में उन्होंने ब्रीडिंग करवाया, रीजन इज टू चेक कि उसका एनालिसिस सही था कि नहीं. ओके, सो फर्स्ट उसने क्या किया, अब देखो 4 पॉसिबिलिटीज क्या क्या आ गए. सेम वही प्लांट्स हैं, उसी स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, बस उनका वाइल्ड टाइप नहीं था, मिक्स टाइप था. तो ये हो गया हमारा F3 जनरेशन. सो नाउ यू सी द आउटकम. 2 ऐसे हैं जो कंप्लीटली कहाँ पे आ गए, अपने वापस से अपने ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन में आ गए. राइट, मींस वो कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं. एंड जो 2 थे उन्होंने अपने पेरेंट्स का ही कैरेक्टरिस्टिक रखा. अभी देखो ये क्या होता है, दिस इज नोन एज पॉसिबिलिटी या फिर आप इसको प्रोबेबिलिटी बोल सकते हो. ये सिर्फ बाय चांस है, इट्स नॉट कि हमेशा सेम आउटकम आएगा. इट्स लाइक कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है. तो इसको अगर आप रेशियो में काउंट करोगे, सो दिस वन कैरेक्टरिस्टिक्स 1, एक जैसे ये वाले एक जैसे हैं, मिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स 2, एंड इनका अनदर वाइल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज 1. सो दिस इज व्हाट जेनेटिक रेशियो या जीनोटाइप रेशियो आप बोल सकते हो. Okay, so he gave these kind of concepts basically. तो उसने बताया कि
कैरेक्टरिस्टिक कैसे फ्लो होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एंड ग्रीगर मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स, और उनकी बनाई हुई जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जितनी भी थ्योरी हैं, 3 बेसिक थ्योरी उन्होंने प्रपोज किया था, उस थ्योरी और उसके रिलेटेड जो भी स्टडीज हैं उसको हम बोलते हैं मेंडलिज्म. ओके, एवरीवन अंडरस्टूड दिस मच? Yeah. Okay. And yes, I told, I think I'm going to check about the notes also. I already Yes. told everyone कि आप लोगों को क्या करना है, आपके notes भी prepare करने हैं properly. So you all are doing it? Yeah, ma'am. Yes. Okay. So can anyone show me? Means I want everyone to just open your back camera. Front camera open करने की जरूरत नहीं है. मुझे सिर्फ और सिर्फ notes देखने हैं आपके. Ma'am, from the beginning lesson. I just want to see कि in general बच्चे notes prepare कर रहे हैं क्या? You can show me the beginning also. We have just only finished hardly 2 chapters, right? So you can show me. Everyone, it is for everyone. You all have to show. Otherwise, I won't move on. Ma'am, can you Yes, Aryan, I can see Aryan. Khushi, I can see you, but not your notes. Okay, yes, I can see. Yes. What about others? Aryan is showing very well. Khushi is also showing. I can see. Yes. Okay. Okay. What about other people? Some people. Shaurya, आपके पास अगर लैपटॉप में कैमरा नहीं है, जिन बच्चों के पास, Asit, yes, I can see Asit's note also. So Shaurya, आप एक काम करना, you can send me photos. Those who cannot show me right now, you have to send me photos. You all can click photos now. So you can Aditi, yes, I can see Aditi's, I can see Asit. Your notes I can see. Yes, what about other people? Only 4 people. What about Bhavya, Utkarsh, Kadambari, Shivraj? Yes, everyone are showing now. Okay, good, good. Means the class is doing their work. Okay, very good. Everyone, Kadambari, yes, I can see. Kadambari, can you put the camera a little closer so that I can see what you have written? Okay. Utkarsh, I'm not able to see yours. Okay, Sahira, Himanshu, Prashant, and other people. What about you? What about you all? Okay. So how many of you haven't showed me yet? You can raise your hand so that I will come to know कि कितने बच्चों ने नहीं show किया, because I already have noted those students जिन्होंने अपना अपना note show किया है. But I want everyone's notes. So this is the only way I can see and I can check कि आप लोग पढ़ रहे हो सच में कि नहीं पढ़ रहे. Otherwise, how would I know that you all are doing your work? Yes, Khushi, you were saying something? Ma'am, are you able to see my notes? Wait, I just minimized everything. Wait. I was able to see. I saw your, yes, I am. Ma'am, Okay, I can see few of the diagrams also. Okay, yes, I can see, Khushi. I can see your work. Very good. And those who showed me, good job. Keep it up and keep on preparing these kind of notes. इसके पीछे 2-3 reason ये है कि first आप लोगों की language habit रहेगी. Okay, yes, Khushi, I can see your work. So आप लोगों का जो लैंग्वेज पे कमांड रहेगा वो बेटर रहेगा. सेकंड पार्ट ये है कि आप लोग आपका जो इंग्लिश टच है, हाउ टू राइट आंसर्स, हाउ टू राइट ऑन बिग क्वेश्चंस, आप कैसे आंसर लिखोगे, क्या करोगे, बिकॉज टुडे इज पेंडेमिक बट यू ऑल नो इन फ्यूचर यू ऑल हैव टू गो बैक टू द नॉर्मल केस. वापस से Yeah, आपको ma'am. थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें सॉल्व करनी पड़ेंगी. 5 मार्क क्वेश्चन, 8 मार्क क्वेश्चन, एवरीवन इज गोइंग टू आस्क विथ यू.
ओके सो वो चीजें जो है वो आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए एंड दैट इज द ओनली वे योर प्रैक्टिस विल बी मेंटेन्ड बिकॉज एमसीक्यू में क्या हो गया है बच्चे बिगड़ गए हैं पूरे उनको पता ही नहीं है कि लिखना क्या है क्या करना है क्या नहीं करना है ओके बिकॉज दे ओनली आर फोकस्ड अबाउट देयर एमसीक्यूज राइट आंसर मिल गया दैट्स इट टिक कर दिया काम खत्म बट हमें लिखना भी है लिखने की भी उतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए सो आई एम गोइंग टू Ma'am, टेल यू can अबाउट ऑल you दोस see पार्ट my ऑल्सो notes? सॉरी yes Ma'am, Bhavya I'm Bhavya. Can you see my? yes Bhavya I can see yours can you please move little closer so that I can see the words also basically yes I can see the bacteriophage drawing yes I can see yeah yes I can see okay okay Ma'am, I can share the notebook work of that the first lesson which we yeah were sure had sure done. sure please share because I collect students notes also because such bolu to students notes are way better than teachers note means this is the truth this is the thing I would like to give you the credits for because you put your hard work in maintaining the notes in preparing everything you prepare beautiful drawings with beautiful handwriting teachers don't do that okay so I always collect my students note means whoever has ever sent me anything so I always see that okay I can see someone is showing their video okay okay Aryan I can see yours Aryan yes good very good I can see the diagram I can see bacteriophage I can see about the microorganisms yes very good Ma'am, can you see my work? uh now who is saying I didn't recognize the voice Ma'am, yeah Kushi I saw yours because you always send me periodically about everything you Yeah, ask ma'am. questions so I know you maintain your notes so yeah these things are important please try to maintain notes and those students who haven't done because now I know there were 20 students in the class as of now so out of which only 10 students have shown about the notes and those who haven't and those who don't have any kind of camera facility try to click pictures and then send it to me that doesn't matter don't bother about your handwriting though don't get bother about your presentation वो हम improve करते जाएंगे if is there any problem I'm definitely going to correct it but yes for now please show everyone कि आपने क्या क्या किया क्योंकि जब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे then I won't be able to understand कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं एक homework जो मैं आज यहाँ पे दे रही हूँ that is something related to tissue because we हमने हाफ ही प्लांट टिश्यू किया है वी हैव टू understand individually about parenchyma, sclerenchyma, collenchyma and these two means about 5 types हमें individually अभी थोड़ा डिटेल में पढ़ना है and then about animal tissues तो हम आपको क्या करना है everyone have to read about these simple tissues can you all do that this is your homework Yeah, ma'am. 8th standard Yes, students ma'am. I understand you already know everything बट 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स को हमें समझाना है कि एग्जैक्टली वो टिश्यूज क्या है वी हैव टू मेक देम वेरी क्लियर और उनको इतना इजी लगे ये टिश्यू चैप्टर और पूरा कॉन्सेप्ट कि उनको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आने चाहिए सो दिस इज आवर टारगेट सो वट एवर यू ऑल हैव टू डू रीड अबाउट simple tissue simple plant tissue this is your homework everyone's homework then we will discuss about the concepts then we will discuss about in detail कि exactly simple plant tissues क्या होते हैं और complex क्या होते हैं so and if possible you can maintain your notes also and you can write about it okay Yeah, ma'am. yeah everyone Ma'am, understood yes ma'am, can I send even the extra notes which I made of different topic to you? Yes, you can. It will be very helpful for me. It will be helpful for everyone also. Yes, you can. Anyone can send me anything. Means any doubt, any question, any Yeah, extra ma'am. notes. You want to get approval of something. You are writing something, and you would like to have my help in that particular content. You can ask me anytime, anything. Okay. So the thing is, students, I'm as if I'm. I already told you that I'm traveling right now. So is it okay that I'm leaving everyone 5 to 10 minutes early today? Okay, yes, sure, yeah. Yes, Yeah, ma'am. ma'am. No problem. Ma'am, Sure. in the notes, I just write a point and not the full sentences. So it's That's okay now completely because fine. I That's can see completely that. fine, Shaurya.
देखो अभी हमारे जो नोट्स है ना उसमें पॉइंट्स ही इंपॉर्टेंट है. जो फुल सेंटेंस फॉर्मेशन है, यू डू इट व्हेन यू आर एक्चुअली प्रैक्टिसिंग अबाउट द थ्योरी एग्जाम्स. ओके, अदरवाइज शॉर्ट पॉइंट्स जो है दैट इज इनफ, बट practice रहनी चाहिए कि how to make a sentence. That practice should not go away. Okay, that's my intention, nothing else. Otherwise, slowly and steadily you will understand how to write big sentences, how to write means 1 page 2 page जो question answers हैं, you will understand it slowly. But at least you have to start writing. The problem is हर चीज digitalize हो गई है and you all are getting all the facilities very soon. तो क्या होगा, आपकी life dependency ना without writing पूरी की पूरी digitalize हो जाएगी. And because of that Yeah, you ma'am. will be able to maintain your own thing. खुद का भी एक content maintain करना होता है. Notes are very much important, and especially those people who are would like to pursue something great, yes, in some higher studies in that particular subject. So at least अपने favorite subject का notes तो maintain करना ही चाहिए. Okay, so that's my intention basically. Okay, so yes, till then please post your doubts. Send everyone, please send your notes, क्योंकि जब तक पूरी class मुझे अपने notes और सब कुछ नहीं दिखाएगी, I won't move ahead. Okay, because syllabus complete होने से ज्यादा important है आपको concept समझ में आया कि नहीं, that is more important. And please be active and start participating in all kind of Olympiads and everything. I think PACE is already in contact with everyone, right? If those who are interested in all kind of science Olympiads, KVPY and other things. So be actively participating in all kind of Olympiads and competitions. It will help you a lot. Okay, so yes, have a nice day and a happy Ganesh Chaturthi to everyone. I didn't get the opportunity to wish all of you. So happy Ganesh Chaturthi, and I think बहुत सारे लोग celebrate कर रहे होंगे, सबके घर में बन रहा होगा. So yeah, enjoy your Ganpati all Yeah. time. Let's meet next week then. Okay, take care. Bye everyone. Bye, ma'am. Happy Take care. Ganesh Chaturthi, ma'am. Bye, ma'am. Thank you. Bye everyone. Bye.